So sorry for the delay. My name is Dr. Mohammad Hashim. Today, the lecture is being assigned to me is SBL for ischemia. So I have given the scenario yesterday. I hope you all get the scenario. If you didn't get the scenario, you can go to the chat and see the scenario so we can discuss. Uh, we can discuss our topic today. So the scenario is a 49-year-old gentleman smoker with 12 pack years and a strong family history of ischemic heart disease. He presented an emergency with complaint of epigastric pain and chest discomfort for 2 days. On examination, he is hemodynamically stable. So what are the differential diagnoses for epigastric and chest pain or discomfort? You have to write, or if admin allows you, you can speak as well. So how can I communicate with you? I don't know. Hello, kindly write on the chat. So can I? Okay. Shuja said it's angina. In differential diagnosis, what you write, what, so repeat the scenario. The scenario has been written in the chat group. You can see it there. I can go, if I can copy this and copy, paste. This is the scenario which I've texted again in chat. 49-year-old gentleman, a smoker with 12 pack years and a strong family history of ischemic heart disease, presented in ER with complaint of epigastric pain and chest discomfort for 2 days. Hemodynamically is stable. So you all write your differential diagnosis first, and we will discuss first differential diagnosis. And now you got the scenario or not? Okay. Why? Hello? Copy to everyone. Now you get the scenario. Let me know if you get this. Okay. This is the scenario. Read the scenario and write your differential diagnosis, next best step management, and how will you proceed, and what are the immediate and definite treatment of this for this patient. Okay, coronary artery disease. Someone wrote coronary artery disease. We have discussed in previous class that stable angina. Okay, what else, please? MI, very nice. Then why he presented with epigastric pain, angina? Good. When different diagnosis can be peptic and gastric ulcer, good. Cholecystitis, cholelithiasis, gastritis. Okay. Stenosis. Okay. Does aortic stenosis present at this age? 49, 40s are very young age for aortic stenosis. This is, we have discussed in aortic stenosis that this is disease of elderly. Usually it present in above 60 age of people. Look, first in history,
you have to see what are the chances of this patient to have ischemic heart disease. Whenever the patient present with chest pain, pneumothorax pulmonary embolism, whenever the patient present with chest pain or epigastric pain, we have discussed in my class of evaluation of the chest pain. You have to rule out all those causes which leads to which are the causes of lethal causes of chest pain. So that need to be treated in emergent way, otherwise we can lose the life. So the chances of acute chest pain or chest pain, lethal chest pain, are, you must return all the differential diagnosis, means that you have to write 4 or 5 diseases which can lead to this condition of the patient. So one by one, with your history and your examination and your test, you can deduct your differential diagnosis, and you can lead to the diagnosis, one diagnosis. So differential diagnosis for this can be ACS, not stable ischemic ACS, which composes of 3 diagnoses, 3 disease, that is acute MI, unstable angina, or non-ST elevation MI. It can be gastric ulcer. Yes, but the chances are less because there are more risk factors for this patient to have ischemic heart disease. You have, because he has a strong family, although the age is very young, it's 40 is young age. Usually patient in elderly we get the ischemic heart, but this patient has a strong family history. So a strong family history, and he is a smoker with 11, more than 11 pack years. Whenever a person who has more pack years, that is more than 11 pack years, so he has high chances of getting ischemic heart disease. So these are the favoring points to have that patient is having ACS, either MI, unstable angina, or non-ST elevation MI. So can you tell me what is the significant family history? What what is meant by significant family history or his strong family history of ischemic heart disease? Kindly write your what you get from the strong family. Do you have any idea of a strong family history for ischemic heart disease? Because this is the clue that leads to your diagnosis. Generic relation. What is meant by generic relation? Because this is the thing which you don't need any test, which you simply by asking 2 or 3 questions, you can lead that patient is many cases in family with same conditions. Okay. No, this is not the thing. Is it significant that if any of the family member have ischemic heart disease at the age of 60? Father less than 50 years of age. Okay, no. Okay, let me tell you. Okay, let me tell you कि इनकी फैमिली में किसी को भी ischemic heart disease हो, male more less than of at the age of less than 55 years of age, and female at the male less than 50 years of age, and female at the less than 55 years of age. Family members meant by first degree relative, either his brother and sister or mother or father. इनमें से not his cousin, not auntie, not uncle, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव सिर्फ इसके भाई बहन और वालिद वालदा. इसके अलावा कोई और फैमिली हिस्ट्री जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. तो आपने पूछना है हिस्ट्री में कि फैमिली में किसको हुआ था, भाई बहन में से किसी को या वालिद वालदा में से किसी को. वालिद का लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज और वालदा का लेस देन 55 इयर्स ऑफ एज. अगर ये है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो जाएगी इसकी. अच्छा, एक तो ये है कि इसके फादर को एट लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज कैबेज हुआ था, सही, तो ये सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री. और इसके
पैक ईयर्स, व्हाट इज मेंट बाय पैक ईयर्स? और इससे क्या रिलेशन है? इट हैज बीन सीन दैट किसी का भी अगर पैक ईयर्स मोर देन 11 हो, मोर देन 11 पैक ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग हो किसी की, तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग इस्केमिक हार्ट डिजीज इज वेरी हाई एंड लंग डिजीज इज वेरी हाई। तो इसके 12 पैक ईयर्स हैं, मोर देन 11 पैक ईयर्स। तो पैक ईयर्स का मतलब ये है कि 20 सिगरेट्स पर डे फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो ये अगर 20 cigarettes per day for more than a year is a one pack years। सही है? तो ये कैलकुलेशन है, बाय फार्मूला यू कैन गेट दिस। अच्छा, एक सही है। अब जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास क्या आ गया? ACS आ गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यूजुअली डजंट प्रेजेंट लाइक दिस। अच्छा, जो है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक आ गया, सही। और क्या है? यंग पेशेंट है तो कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस आ गया, सही है। मस्कुलोस्केलेटल पेन हो गया, चेस्ट पेन हो गया। तो ये हो गया। अब आपने रूल आउट कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो बना लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होगा इसके लिए, क्या करेंगे हम अब इसका? हाँ, नीमोथोरेक्स चेस्ट, नीमोथोरेक्स चेस्ट, उस बिल्कुल ये आ जाएगा उसमें, आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नीमोथोरेक्स आ जाएगा। अच्छा, वैसे वेरी गुड। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप जो है आपकी ईसीजी होगी। ईसीजी विद इन, यूजुअली इट इज बीइंग सेड दैट विद इन 10 मिनट्स ऑफ अराइवल इन ईआर पेशेंट शुड हैव ईसीजी। तो ईसीजी होनी चाहिए इसकी नेक्स्ट बेस्ट स्टेप में। कार्डियक बायोमार्कर्स नो, बिकॉज क्यों? क्योंकि कार्डियक बायोमार्कर्स को आने में मोर देन 2 आवर्स, मोर देन 3 आवर्स लगते हैं। तो क्या आप उस वक्त तक वेट करते रहेंगे? आप पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देंगे? पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया है। तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप जो है आंसर इज ईसीजी, नॉट चेस्ट एक्सरे, ओनली ईसीजी। ईसीजी में चेस्ट एक्सरे के लिए पेशेंट को जो है वो आप डिपार्टमेंट से लेके जाएंगे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ इसको मूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट को डिटोरिएट कर सकती हैं अगर उसे ACS है। तो आप ईसीजी करा लेंगे। ईसीजी में क्या होगा? ईसीजी में क्या देखेंगे आप? भाई कहाँ पहुँच गए? एंजियोग्राफी नो नो। आप जो है ER में कौन सी टेस्ट कराएंगे इसका? सही है, कार्डियक एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग नो। कार्डियक पहले उसको इन इन चेस्ट पेन, किसी को अगर पेन हो रहा हो तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, आप उस कंडीशन में टेस्ट नहीं करा सकते। कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग होता ही उसमें है जब आपको डाउट होता है कि इसको चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा होगा, इसकी ECG तो चेंजेस नहीं होंगी, तब आप कराते हैं। आप ECG कराएंगे तो ECG में आपको क्या दिखेगा? क्या देखेंगे ECG में? हाँ, ECG में हम देखेंगे इस्केमिक चेंजेस। तो इस्केमिक चेंजेस क्या क्या होती हैं? इस्केमिक चेंजेस होती हैं ST एलिवेशन, वेरी गुड, ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन, सही है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपकी इस्केमिक चेंजेस होती हैं। 3 चेंजेस जो हैं ये इस्केमिक बताती हैं। और क्या देख सकते हैं? और क्योंकि इस्केमिया की वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया भी हो सकता है, तो आप टैकीकार्डिया देखेंगे। इस्कीमिया की वजह से पेशेंट को VT VF हो सकता है, तो आप देखेंगे कोई अरिथमिया तो नहीं है, सही है। तो आपने अरिथमिया देख लिया कि कोई VT नहीं है, SVT नहीं है, सही है, आपने ये देख लिया। और आप क्या देखेंगे? और आप अदर लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज की जो है वो क्लू आपको मिल सकता है। जैसे किसी ने कहा था पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो पल्मोनरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट कॉमन साइन जो है वो साइनस टैकीकार्डिया है। लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिक है, जो कि डायग्नोसिस बना देती है, वो है S1Q3T3। These all things have been discussed with you in my previous lectures। तो अगर आपको S1T1Q3 आपको मिल जाती है, ये चेंजेस आपको मिल जाती हैं, तो चांसेस ऑफ हैविंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज वेरी हाई, सही। तो अगर ये नहीं मिलती तो आप अब आप नेक्स्ट, आपने यहाँ पे सपोजिटली आपको पेशेंट को आपकी चीज आपने ECG कर ली। ECG में जो है आपके आ गई, क्या आ गई? ECG में आ गई ST डिप्रेशंस, सही।
तो आपने ईसीजी की, साइनस टैकीकार्डिया आ गया और ईसीजी आ गई, एसटी डिप्रेशंस आ गई। अब फिर क्या करेंगे, आपके पास व्हाट नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इज ईसीजी। ईसीजी में मैं देखूंगा एसटीटी चेंजेस, एरिथमिया देखूंगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चेंजेस देखूंगा। सही है। तो अच्छा, तो अब हाउ विल यू प्रोसीड, आपने ये देख ली, यहाँ पे आ गई भाई इसको के एसटीटी चेंजेस आ गई, एसटीटी चेंजेस यानी एसटी डिप्रेशंस आ गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रोसीड, अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? हाँ, हाँ, सही। एसटी डिप्रेशंस में कार्डियक ट्रोपोनेंट आइदर गिव टीपीए और प्राइमरी पीसीआई बायोमार्कर। सही सही सही, राइट योर आंसर्स, आई एम लुकिंग इनटू इट। सही सही, वेरी नाइस। चलें, अब क्या हुआ, नाउ यू आर लीडिंग टूवर्ड्स योर डायग्नोसिस। आपने रूल आउट कर दिया कि भाई मेरी ईसीजी की जो चेंजेस हैं, ईसीजी इज टेलिंग मी दैट द डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली एसीएस एंड इट इज नॉन एसटी एलिवेशन एमआई मोस्ट लाइकली, क्योंकि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई के लिए आपको क्या होना चाहिए, चेस्ट पेन हो, एसटीटी चेंजेस हो और ट्रोपोनिन रेस्ट हो। तो आपकी दो चीज़ें तो आ गई, चेस्ट पेशेंट को। द सेकंड थिंग इज ईसीजी चेंजेस आ गई। द तीसरी चीज़, आपको टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है, आपको इसके लैब्स भेजने हैं। लैब्स में सारी बेसलाइन आपने भेज देनी है, क्योंकि पेशेंट को कैथ की ज़रूरत हो सकती है। तो आपके पास क्रेटिनिन हो, सीबीसी हो, पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है, ये भी कॉज ऑफ चेस्ट पेन हो सकता है। अनीमिया को रूल आउट करेंगे। आपने यूरिया क्रेटिनिन भेज दिया, यूरिया क्रेटिनिन इस वजह से कि आपने कैथ करनी है, पता चले रीनल डिसफंक्शन हो, तो रीनल डिसफंक्शन तो नहीं है। सही है। और आपने जो है पीटीआईएनआर भेजना है ताकि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता चल जाए, क्योंकि हम जो है इसको एंटी कोगुलेशन पे रखेंगे, एंटी प्लेटलेट्स पे रखेंगे, तो पता चले कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो और पेशेंट जो है वो ब्लीड कर जाए। सही है। और बाकी बायोकेमिस्ट्री भी भेज देना एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, तो अच्छी बात है कि आप इसका लिवर एसजीपीटी एसजीओटी भेज दें, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरली आपने ये 3 टेस्ट कराने हैं। सीबीसी कराना है, यूरिया क्रेटिनिन कराना है, पीटीआईएनआर कराना है यूजुअली। लेकिन अगर ये कोई मल्टी टर्शियरी केयर में जाते हैं तो इनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बायोकेमिस्ट्री। व्हाट वी नीड इज ट्रोपोनिन्स, ट्रोपोनिन्स या कार्डियक बायोमार्कर्स कोई भी करा लें आप, और जो है आप इसका सीबीसी और रीनल फंक्शन देख लें। अच्छा, तो हमने बायोमार्कर्स करा लिए, बायोमार्कर्स रेज्ड आ गए इसके, तो हमारी जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो गई कि भाई इसको जो है नॉन एसटी एलिवेशन एम आई, यूरिया सीबीसी, यूरिया क्रेटिनिन एंड पीटीआईएनआर, दैट्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आईएनआर, दैट इसके क्लॉटिंग या हीमोस्टेसिस देखने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारा एंटी कोगुलेशन और एंटी प्लेटलेट देंगे अगर इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जिससे हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता चलेगा, तो हम वो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब जो है हमारा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कंफर्म हो गया, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे और इसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या होगी? इमीडिएट ट्रीटमेंट बता दीजिए कि भाई क्या क्या देते हैं हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में, एंड हाउ, हम कैसे चले। सही है, सारी ट्रीटमेंट ये एक एक करके ना लिखें, जो भी अपना आंसर लिखे तो वो कंप्लीट किया। ट्रीटमेंट में मैंने नॉन एसटी एलिवेशन में सिर्फ एस्पिरिन कहा था, सिर्फ एनाल्जेसिया कहा था, आपको बहुत सारी चीज़ें कही थी ना, थ्रोम्बोलाइटिक्स। अच्छा, आप ये सुन लें एक बात कि इन थ्रोम्बोलाइटिक्स और प्राइमरी पीसीआई है, दैट इज परकुटेनियस, प्राइमरी परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आप कब करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आप एसटी एलिवेशन एमआई में करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स इज नॉट इंडिकेटेड इन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। थ्रोम्बोलाइटिक्स और प्राइमरी पीसीआई इज इंडिकेटेड इन एक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई। सही है। आप कार्डियक कैथेटराइजेशन या कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में, लेकिन प्राइमरी नहीं करते। प्राइमरी मींस आप इमरजेंसी से विद इन 1 आवर और विद इन 30 मिनट्स पेशेंट को मूव करा लें टू कैथ लैब। तो इसमें हम ऐसा नहीं करते, इसमें हम पेशेंट को मेडिकली ट्रीट करते हैं, पेशेंट का
पेन और सारी हीमोडायनेमिक्स को स्टेबलाइज करते हैं। फिर आराम से आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 1 डे और आफ्टर 2 डे कैद करते हैं। इसमें कोई इमरजेंसी कैद की इंडिकेशंस नहीं होती। तो हाँ, अब आप मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट में बिल्कुल आप मेडिकल ट्रीटमेंट में आप डुअल एंटीप्लेटलेट देंगे पेशेंट्स को। डुअल एंटीप्लेटलेट्स में एस्प्रिन आएगा, क्लोपिडोग्रिल आएगा। क्लोपिडोग्रिल की P2Y12 इनहिबिटर, जिसमें क्लोपिडोग्रिल है, टिकेग्रोलॉल है, प्रेसोग्रिल है, सही है। उसके बाद आप पेशेंट की पेन को सब्सिडाइज करने के लिए आप नाइट्रोग्लिसरिन देंगे, सबलिंगुअल और आईवी भी दे सकते हैं। और क्या देंगे आप? बीटा ब्लॉकर्स देंगे आप पेशेंट को। पेन अगर सबसाइड उससे भी नहीं होता तो फिर आप जो है ना ओपियोइड्स या मॉर्फिन जो है आप पेन किलर देंगे पेशेंट को, सही। स्टैटिन देते हैं, चाहिए ना स्टैटिन, आप एटोर्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन ये देंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? अब पेशेंट को जो है, हाँ, आपने हीमोडायनेमिकली स्टेबलाइज कर दिया, आपने डुअल एंटीप्लेट हेपरिन देंगे, एंटीकोगुलेशन में हेपरिन देंगे, सही है। डायूरेटिक्स, हर केस में डायूरेटिक्स इंडिकेटेड नहीं होती। इंडिकेट डायूरेटिक्स तब आप देते हैं जब पेशेंट को साइन ऑफ फेलियर्स हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्रैप्स मिले। तो मैंने तो ऐसा फिजिकल एग्जामिनेशन में तो कहा था कुछ भी नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने कहा था हीमोडायनेमिक्स स्टेबल है, कोई क्रैप्स नहीं है, कुछ नहीं। तो आप क्यों देंगे डायूरेटिक्स? एस इनहिबिटर, बाकी सारी ट्रीटमेंट जो है, ये तो जो जो मैंने कही ना, ये 4-5 ये तो आप देंगे। बाकी सारी एस इनहिबिटर, ए आर बी, ये तब इंडिकेटेड होती हैं तब अगर प्रेशर्स बढ़े हुए हैं। अगर पेशेंट को प्रेशर्स बढ़े हुए हैं तो आपकी और ट्रीटमेंट्स ऐड हो जाएंगी। अगर पेशेंट के प्रेशर्स बढ़े हुए हैं तो आप आइसोकेट या नाइट्रोग्लिसरिन आईवी देते हैं, सही है। आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं अगर प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, सही है। अगर कोई और इंडिकेशन है तो आप और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, किसी ने ये निमोनिक लिखा है मोनोथेरेपी, मोनाथेरेपी, बिल्कुल आप मोना इसको कर सकते हैं, जिसमें मॉर्फिन है, ऑक्सीजन है, ओपियोइड्स हैं, नाइट्रोग्लिसरिन है, एस्पिरिन है, लेकिन इसमें वो नहीं, एंटीप्लेटलेट। अच्छा, ये जो है एंटीप्लेटलेट आ जाएगा, जिसमें एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल दोनों आ जाएंगे। और क्या करेंगे? चलें, अब आपने ये कर दिया, पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया, सही है। पेशेंट स्टेबलाइज हो गया, अपने पेशेंट को वार्ड में सीसीयू में शिफ्ट करा लिया। अब जो है, अब इसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या होगी? मोर देन 24 आवर्स और 48 आवर्स गुजर गए, तो आपने मीन वाइल इन ई आर, जब पेशेंट जो है ना, जब मीन वाइल इन ई आर पेशेंट स्टेबलाइज हो गया, पेन फ्री हो गया, तो आप जो है और आपने देख लिया कि एस टी एलिवेशन नहीं है, कोई इमरजेंसी एज सच इतना नहीं है, तो आपने इमरजेंसी कार्डियक कैथेटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप चेस्ट एक्सरे भी करा लेंगे। चेस्ट एक्सरे क्यों? चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट, ऐसा तो नहीं है कहीं हम जो है अदर कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन को, अदर कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज हैं उसे हम इग्नोर कर रहे हैं या हम मिस कर रहे हैं। तो इसमें क्या मिलेगा हमें? हम किस चीज़ को रूल आउट कर रहे हैं? हम नीमोथोरेक्स को या पल्मरी एम्बोलिज्म को, इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे, हालांकि चांसेस ऑफ गेटिंग इट इज़ वेरी लो। To have pneumothorax or pulmonary embolism is getting it very high, लेकिन to have the chest x-ray doesn't cost you much, कुछ ऐसा वो नहीं होगा, लेकिन इससे आप जो है मेजर जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉज को रूल आउट कर सकते हैं। तो आप चेस्ट एक्सरे करा के आप जो है लाइफ थ्रेटनिंग कॉज को आप रूल आउट करा लेंगे। फिर पेशेंट सीसीयू में शिफ्ट हो गया एंड मोर देन 24 आवर्स गुजर गए पेशेंट के, तब आप क्या करेंगे? डेफिनेट ट्रीटमेंट के लिए आप इसकी जो है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, बिल्कुल एंजियोग्राफी करेंगे। और एंजियोग्राफी में आप देखेंगे कि कौन सी आर्टरीज खुली हुई, कौन सी आर्टरीज जो है वो उसको पेन कर रही हैं, कितने वेसल डिजीज़ है, क्या हम इसकी जो है वो पीसीआई या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, या क्या ये हम इसकी एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, इसको कैबेज के लिए भेज दें। तो वो डिपेंड करता है उसकी एनाटमी पे, सही। अच्छा, अब इधर एक और चीज़ जो मैंने मिस किया है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि जीपीआई जो है, ये ज़रा सा इसका एक्सटेंडेड वो लिखें तो मुझे, मैं भूल गया हूँ कि ये क्या है। अच्छा, दूसरा
अच्छा, what difference between angiography and angioplasty? In angiography, it is a diagnostic test. You only sees the anatomy of coronaries. Angio means coronaries, and graphy means picturization, graphy. So you only see the anatomy of the coronaries. Is there any obstruction or not? Number one, how many obstructions are there, how many stenosis are there, and how many vessels are involved. One, two, three. Okay. And can it be treated with angioplasty or not? Is it stentable or not? Or patient needs to go to bypass surgery? Acha. And angioplasty is not a diagnostic, it is a therapeutic प्रोसीजर. सो इसमें क्या करते हैं हम कि जो आर्टरी जहाँ से बंद है हम उसे खोल देते हैं. तो दिस इज वो थेरेपेटिक प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी. प्लास्टी बता रहा है ना. एंजियो मीन्स कोरोनरीज, प्लास्टी मीन्स आप प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं उसकी, और एंजियोग्राफी आप सिर्फ एंजियो की ग्राफिक्स कर ले रहे हैं. तो एंजियोग्राफी इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंजियोप्लास्टी इज अ थेरेपेटिक अप्रोच. अच्छा, तो फिर हम अच्छा, और कैथ लैब में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कैथ लैब में जो चीज़ें हैं वो आपकी डायग्नोस्टिक कैथेटर्स हैं, फिर उसके बाद जो है आपके कोरोनरी वायर्स हैं, स्टेंट हैं, बैलून्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है. ये सारी चीज़ें जब आप वार्ड आएंगे हमारे तो मैं आपको इंशाल्लाह विजिट कराऊंगा अपने कैथ लैब की, और प्रोसीजर कैसे होता है, क्या होता है, तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. I wanted to ask, angioplasty when a stent is placed, doesn't it rupture the? No, no, no. It doesn't rupture. It what it does कि जो अथेरोस्क्लेरोटिक वो होगा, वो क्या कहते हैं, वेसल वॉल के साथ स्टिक कर जाते हैं उसको, तो और आर्टरी खुल जाती है. अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैंने मिस किया है, हम इस पेशेंट को जो है ना एग्रेसिव एंटी प्लेटलेट पे दे रहे हैं. सही है, एंटी प्लेट, और पेशेंट स्ट्रेस में भी है, डुअल एंटी प्लेटलेट हेस्पिरिन हाई डोज में दे रहे हैं, और पेशेंट गैस्ट्रिक पेन के साथ आया था. ही में, और ये स्मोकर भी था, तो इसको डुअल पैथोलॉजी भी हो सकती है. हो सकता है कि अभी इसको CS हुआ, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हुआ, लेकिन पहले से इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रहा था या गैस्ट्रिक अल्सर था, तो किसी ने इस पे कुछ नहीं कहा. तो इसमें हम PPI ऐड करेंगे, और वो गैस्ट्रिक के लिए भी हम इसको रूल आउट करेंगे. सही है. तो हम इस पे, क्योंकि आप इसको ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिससे अल्सर जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर या APD, एक्यूट पेप्टिक डिजीज जो है ना, एसिड पेप्टिक डिजीज, ये जो है वो वर्शन हो सकता है. तो यू शुड कीप द पेशेंट ऑन PPI एज वेल. अच्छा, अच्छा. मेरे ख्याल से जो मैंने आई हैव गिवन द 2 or 3 लेक्चर्स, आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं है. अगर वो पढ़ लेते तो फिर ये सारा उसी में ही से था. How often we should change the stent, or it's for lifetime. अगर वो बंद हो जाए तो you can place another stent, or you can balloon that. Otherwise it is for lifetime. We cannot change it. We can balloon it, or we can place another stent in a stent. So कैसा रहा क्लास? How was it? I hope कि आप लोगों को कुछ benefit हुआ होगा. And I tried my level. Sorry for delay. There was a technical issue. I wasn't able to get sign in, और जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे थे. बॉडी नहीं, फॉरेन बॉडी कंसीडर नहीं करती. फॉरेन बॉडी तभी तो ये फॉरेन बॉडी की इसी को फॉरेन बॉडी कंसीडर करने के लिए तो इसको अभी जो रिसेंट हमारे नए न्यू जनरेशन स्टेंट जो है वो ड्रग इलूटिंग स्टेंट है. वो ड्रग जो है
वो हेल्प करती है कि ये फॉरेन बॉडी कंसीडर ना करें और इसकी जो है वो एंडोथीलियर की ग्रोथ ना हो, एंडोथीलियम की ज़्यादा ग्रोथ ना हो स्टेंट में। तो उसी को ओवरकम करने के लिए जो है वो ड्रग इलूटिंग स्टेंट्स बनाए गए हैं। प्रीवियसली सिर्फ मेटल लगाया जाता था, बेयर मेटल, बीएमएस, बेयर मेटल लगा, बेयर मेटल, बीएमएस पहले था, बीएमएस, 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 बेयर मेटल स्टेंट। तो इसमें ये फॉरेन बॉडी कंसीडर होती थी और एंडोथीलियम की ग्रोथ होती थी और स्टेंट जल्दी बंद हो जाता था। तब इस उसको ओवरकम करने के लिए अब जो न्यू जनरेशन स्टेंट्स हैं वो हैं ड्रग डेस, ड्रग इलूटिंग स्टेंट्स। तो ड्रग इलूटिंग स्टेंट डजंट allow the endothelium to growth or occlude the stents। जी बहुत सारे, अब तो ये न्यू जनरेशन, पहले तो पैक्लीटैक्सेल था, पहले पैक्लीटैक्सेल वो होता था, क्या कहते हैं, कोट होता था, फिर अब दूसरे सिरोलिमस, एजोरिलमस, और बहुत सारे अब नए नए जो ड्रग्स हैं वो कोट होते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो अपने लेक्चर्स हैं वो कुछ लोगों ने मुझे मेल की थी, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए थे, और कुछ जो स्टूडेंट्स है व्हाट्सएप पे भी शेयर किए थे। आप लोग वो लेखें, तो उसमें सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं, इट इज़ ऑल प्रेजेंट इन माई लेक्चर्स। एंड you, if you have any questions, you can write me, and you can come to cardiology department, inshallah, after this pandemic gets over. So we will discuss things, inshallah. Thank you. Allah Hafiz.